सो ऑन द बेसिस ऑफ मेनी आइडियाज़ ये आपके लाइब्रेरियन जो पोस्ट हैं उसके लिए भी ला दिया गया है, लाइब्रेरियन असिस्टेंट पोस्ट। उसके लिए जो टॉपिक है फटाफट क्विकली थोड़ा दे देखते हैं। लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज जो एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल, देयर distinguishing features and function, role of UGC for the development of academic library, role of library in formal and informal education, normative principle of library and informative science जो होता है, 5 laws of library science, implication of 5 laws in library science and informatic science, development of libraries with a special reference to India, Baroda Public Library System, library of cooperation, resource sharing and library networking। ठीक है, यूनिट 4 जैसा आप मान लो, क्योंकि यही बेसिस है सारे लाइब्रेरियंस का, जो भी आपके स्टेट एंड स्टेट के बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो सबको मिला के एक एक यूनिट बना के आपको दे रही हूँ। लॉज रिलेटेड टू लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन लेजिस्लेशन, नियम क्या है, एसेंशियल फीचर्स, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, पब्लिक लाइब्रेरी का कॉपीराइट एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट, library and information profession, attribution of profession, librarianship as a profession, professional ethics, professional association and their role, national international library association जो भी given है, FID, IFLA, LA, ILA, ALA, IAS, LIC, etc. Professional education and research, promotes of library and information service, national level promotes RRR, LF, international level promotes UNESCO, public relations and extension activities, facets and programs, definition, publicity and extension, outreach activities, library pathfinders, factors affecting library development, literacy, publishing and book trade, knowledge organization and information processing retrieval में, universe of knowledge, structure and attributes, modes of information, modes of formation of subjects, different type of subjects, universe of subject as mapped in different scheme of classification, bibliographic description, catalog purpose, structure and types, physical forms including OPAC filing rules, normative principle of cataloging, overview of principles and practice in document description, current trends in standardization and description and exchange, standard codes of cataloging, methods of knowledge organization, general theory of library classification, normative principle of classification and their application, spaces of library classification. फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, देयर फीचर्स, सीसी, डीडीसी, यूडीसी, नोटेशंस, नीड, फंक्शन, कैरेक्टराइजेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, design, development of scheme and library classification, standard subdivision index, trends in library classification, subject classification, principles and subject heading list and their features, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेफिनेशन, नीड, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, कंप्यूटर का बेसिक पॉइंट्स आएंगे ही, जो आपके कंप्यूटर के हिस्ट्री, क्योंकि लाइब्रेरी में ये सब भी रहता है, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर के बारे में, MS ऑफिस, DBMS पैकेजिंग, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस पे देखना है। मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज में मैनेजमेंट पूरा आएगा, मैनेजमेंट स्टाइल, अप्रोच, मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, फंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, organizational structure, delegation, communication, participation, job description, analysis, job evaluation, interpersonal relation, recruitment procedure, motivation, group dynamics, training, development, disciplines and grievance, performance appraisal, financial management भी आएगा, mobilization, budgeting, technique, methods of PPBS, zero waste, budgeting, budgetary control, cost effectiveness, cost benefit analysis, outsourcing, रिपोर्टिंग, रिपोर्ट्स कितने टाइप के होते हैं, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, लाइब्रेरी एज ए सिस्टम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, PERT/COM, डिसीजन टेबल, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड, MIS, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, री इंजीनियरिंग बोले, री इंजीनियरिंग, टाइम मोशन स्टडी, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, डाटा फ्लो डायग्राम,
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, डेफिनेशन, कंसेप्ट एलिमेंट, क्वालिटी ऑडिट, एलाइस, रिलेटेड स्टैंडर्ड, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेशंस भी है, इसको थोड़ा कम पड़ेगा, चलेगा। प्लानिंग, प्लानिंग कंसेप्ट, डेफिनेशन, नीड, पर्पस, टाइप्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजियर, MBO। वहाँ पे स्टॉक वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन, रीडिंग, आर्चिविंग, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, प्रिंट, नॉन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, ये सब थोड़ा और इम्पॉर्टेंट था। इसमें रिस्क मैनेजमेंट, कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी बिल्डिंग, इंटीरियर, एक्सटीरियर, फर्नीचर, जो भी चाहिए, प्लानिंग ऑफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी स्टैंडर्ड, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, कंसेप्ट ऑफ चेंज, चेंज इन प्रोसीजर, मेथड, टूल एंड टेक्निक्स, प्रॉब्लम इनकॉर्पोरेटिंग चेंज, टेक्निक ऑफ मैनेजिंग चेंज, और इंफॉर्मेशन सोर्सेस सर्विसेज, ये आपके प्रेजेंट है, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेस। आपके जितने सोर्सेस से मटेरियल कलेक्ट होते हैं, जैसे कि रेफरेंस सोर्सेस याद रखना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंफॉर्मेशन सोर्सेस, एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, पीरियडिकल्स, थेसिस, बुक्स, ईयर बुक्स, पेटेंट्स, ट्रेड लिटरेचर, स्टैंडर्ड, मोनोग्राफ्स, रेफरेंस बुक, ईयर बुक, almanac, atlas, abstracting and indexing, periodicals, bibliographs, handbooks, etc. यूनिट 2 में है रेफरेंस सर्विस, कंसेप्ट, डेफिनेशन, नीड, स्कोप, ट्रेंड, रेफरेंस इंटरव्यू, सर्च टेक्निक, इंफॉर्मेशन सर्विस, प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन सर्विस एंड प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन सर्विस, कंसेप्ट, डेफिनेशन, नीड, ट्रेंड, और उसके अलर्टिंग सर्विसेज भी हैं, बिब्लियोग्राफिक, रेफरल, डॉक्यूमेंट डिलीवरी, ट्रांसलेशन सर्विस, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड देयर सर्विसेज, एंड लाइब्रेरी का यूज़, दैट इज़ योर लास्ट पोर्शन जो आपका आने के चांसेस हैं। टेक्निक ऑफ लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन सेंटर सर्वे, परफॉर्म्ड मेथड, प्रो फॉर्मा मेथड, इंटरव्यू मेथड, रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड, फिर आता है इंफॉर्मेशन यूजर्स एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड, कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन यूजर, इंफॉर्मेशन नीड डेफिनेशन एंड मॉडल, इंफॉर्मेशन seeking behavior, user education, goals, objective levels, techniques, method, evaluation of user education programs, user studied, methods, technique, user studied, evaluation of user studied, user orientation program, conventional and modern techniques, attitude, newsletters, handbooks, leaflets, PowerPoint presentation, websites, etc. तो आपका बहुत बड़ा सिलेबस है। एक बार क्या करेंगे, सारे सिलेबस को लिख लीजिएगा। मैंने ट्राई किया है ग्रुपिज्म करके सारा बताने के लिए। इनमें से ही क्वेश्चन आएगा, आउट ऑफ सिलेबस और नहीं जाएगा। 50 मार्क्स का 80% तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, और बाकी अगर कुछ छूट गया है तो आप अपना लाइब्रेरी साइंस आपने पढ़ा होगा तो उसको थोड़ा सा रीड कर लेना थॉरोली, वहाँ से ही क्वेश्चन रहेगा। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको बहुत कुछ आइडिया मिला हो, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इफ़ यू गॉट इट। ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे।